जे उधर ਨੂੰ कुछ गए किसी डीप रूटड कॉन्स्पिरेसी तहत ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਾਨੂੰ FIR ਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੇਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰ ਯੂਰ ਕਾइंड ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਜਮਪੁਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 11 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ ਹੀ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੋਗਾ। ਹਾਂ, ਤਕਾਰੀ, ਯੈਸ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਬੜੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅੰਤਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ, ਜਿਹੜੇ 112 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ। एक मिनट, हाँ मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये हिंदी में बोल देंगे, चलो। दोस्तों, जो पुलिस की तरफ से अंडर सेक्शन 160 जो 160 के तहत नोटिस भेजे जा रहे थे, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जो नोटिस भेजे जा रहे थे, वो बहुत से लोगों को गए हैं अलग अलग सूबों में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में। तो ये एक टेरर क्रिएट करने के लिए है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो किसान पूछ रहे थे। तो कल हमने अपने जो लीगल कोर कमेटी है, जो अब
12 मेंबर्स की है, उसमें हरियाणा के भी कुछ वकील हरपाल सिंह जी की बदौलत, बीके चुडूनी की बदौलत उस कोर कमेटी में शामिल हुए हैं। तो इन 12 मेंबर्स का हमने नंबर है जो आपके माध्यम से भी हम लोग लोगों के सामने रखेंगे। कोई भी किसान जिनको ये नोटिस जा रहे हैं वो सीधा पुलिस के पास मत जाए, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। वो इन वकीलों से या प्रेम सिंह भंगू जी के साथ या रिस्पेक्टिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उनका कोई जथेबंदी है उसके माध्यम से हमसे संपर्क करे, या जो कोर कमेटी के वकील हैं उनसे सीधा फोन पे बात करें। हम वकीलों के माध्यम से उनका रिप्लाई देंगे, क्योंकि मालूम ये पड़ा है कि जो 2 लोग सीधा बुलाए गए कि डॉक्यूमेंट लाइए अपने, उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ भेज दिया गया। तो ये एक ट्रैप है। आपके माध्यम से इस तरह से बहुत से लोगों को बिना किसी पूछताछ के, बिना कोई इस तरह से उनको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि अभी तक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 44 FIRs हैं और गिरफ्तारी अभी तक सिर्फ 14 FIRs में हुई है। बाकी FIR में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। 22 FIR की कॉपीज हमारे पास हैं, बाकी अभी तक FIR की कॉपीज भी नहीं मिली हैं। तो इसलिए इसमें काफी गड़बड़ होने की आशंका है, इसलिए वकीलों के हिसाब से ही इसमें मूव किया जाएगा। कोई भी किसान आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर पुलिस कोई नोटिस भेजती है वो सीधा मत जाए, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ संपर्क करे और उन वकीलों के साथ संपर्क करे जिनका पैनल हमने अपने मोर्चा के पेज के ऊपर भी डाला है, और आपके माध्यम से भी इसको अब हम जनरल पब्लिक के पास लेकर जाएंगे, ताकि जो इसमें किसी भी तरह का किसी के साथ कोई बेइंसाफी ना हो। बाकी हरपाल सिंह लापता के बारे में अभी थोड़ा लापता इसके माध्यम से जो किसानों को डराना चाह रही है, एक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, वो इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। देखिए, आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये भी कहना चाहूँगा, हम ये जीत के ही जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाने वाले नहीं हैं। आप चाहे कितने ही जुल्म कर लीजिए, हर जुल्म का जवाब हम ऐसे ही देंगे। तो सारी जानकारी दे दी आप सभी। कोई नहीं दे देना। कुलदीप सिंह 2 मिनट ले। दोस्तों, हम तो बाकी तो बता दिया है मिसिंग के बारे में, जो फॉल्स केसेस जैसे भी है, इसके बारे में हम समझेंगे भी गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, मॉरलिटी के खिलाफ भी है, लीगलिटी के खिलाफ तो है। क्यों है, मैं तो इस के तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हर शहरी का ये राइट टू प्रोटेस्ट है, मगर यहाँ गया प्रोटेस्ट के बाद भी, उस डेट के बाद भी लोगों के खिलाफ ऐसे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं जो काफ़ी निंदनीय योग है। 29 को किसी के, 28 को किसी के खिलाफ, इसी तरह अब भी सामने आ रही हैं FIR बहुत लेट भी, उस घटना के बाद भी आ रही हैं। और दूसरी बात, ये नोटिस वगैरह का जवाब की बात करते हैं, नोटिस भेज दिए उसके बाद FIR दर्ज कर दी। आमतौर पे होता है, नोटिस होता है, जो प्रोसीजर है लीगल प्रोसीजर, देख रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात होती है, सब कुछ होते हैं, जो उनका जवाब उड़ीक के बिना, उसका जवाब का वेट किए बिना उन्होंने डायरेक्टली FIR किसी को कहीं से पकड़ के, किसी को किसी जगह से पकड़ के, विदाउट एनी प्राइमा फेसाई एविडेंस वी कैन से, तो उनके ऊपर ये केस फॉल्सली इम्पोज किए जा रहे हैं। क्या ऐसी सरकारों को जो अपने जो सिटीजन्स हैं, जिनके कुछ राइट्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, तो उनके ऊपर ऐसे व्यवहार करना गवर्नमेंट का, क्या उसका राइट टू गवर्न ये है? हम इसी बात पे जोर देंगे कि मॉरल राइट गवर्नमेंट ने लूज कर लिया है। पहले तो वो साजिश के अधीन जैसा किया, कुछ बताया कि हम कोई भी जो किसान है उसका किसी का लाल किले पर झंडा लहराना, जो उनका अपने आदमियों से लहरा के केस दूसरों पर डाल, ये सब मूवमेंट को सैबोटेज करने के लिए
तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसी गवर्नमेंट को जो लोगों की राय से बनती है डेमोक्रेसी में, तो वो अगर ये सेमी फासिस्ट तरीके से बिहेव करे, लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केस फाल्सली इम्पोज करे, अपने सिटीजन्स को भी एलियंस के तरह दूसरे देश के शहरियों की तरह बिहेव करे, ऐसी सरकार को मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा मॉरल राइट नहीं है जो इस देश पर कोई राज कर सके। सो ये भी बात हम कहेंगे, चाहे आज चाहे कल, वो पॉलिटिकल बात है। ऐसी सरकार ने अपनी ग्राउंड खुद तैयार कर ली है, ग्रेव अपनी खुद तैयार कर ली है। सो इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब जो भी है, कुछ भी है, इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं वो सारे काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। सच्ची बात आखिर आनी है, आती है, उसको देर तो लगता है। झूठ थोड़ा जल्दी बोलता है, झूठ से झूठ बात करता है। सो मैं तो इतना ही कहूँगा इस सरकार को अभी भी वक्त है कि ये मांगे माने। जो फॉल्स केस जो इन्होंने बनाए हैं उसकी हाई लेवल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो घटनाक्रम है उसकी सब जुडिशियल इंक्वायरी होकर जो ऐसे इनोसेंट बच्चे हैं जो फंसाए जा रहे हैं, जिनका कोई तल्लुक भी नहीं है, जिन लोगों का कोई तल्लुक भी नहीं है, वो गए भी नहीं हैं वहाँ, तो उन सब लोगों को वैसे ही झूठे केसों में फंसाकर उनको परेशान करना, उनको हरास करना, ये सरकार की जो नीति है, मैं नीति नहीं कहेंगे, ये बदनीति है। सो ये सरकार को वापस केस लेने चाहिए, तुरंत हम मांग करते हैं। और जो घटनाक्रम है उसकी कोई जुडिशियल हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कहा है साथी ने हमारे ना, हमसे पहले जो पहली हमने रिप्रेजेंटेशन दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें चीफ मिनिस्टर थे, उनके होम मिनिस्टर थे और दूसरे मिनिस्टर थे, सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट जो हमारी डिमांड यही थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कम से कम हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो। टोटल कॉन्स्पिरेसी विच वाज हैच्ड बाय द गवर्नमेंट इन connivance with the police and the hundreds of farmers have been implicated in false cases की सारे जो हुआ घटनाक्रम इसकी इंक्वायरी हो। आज भी हम आपके माध्यम से ये मांग को उठाते हैं यहाँ पे कि टोटल घटनाक्रम जिसमें लोग जेलों के अंदर जितने नोटिस फाल्स जा रहे हैं, इसकी टोटल फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट एजेंसी उससे गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी कराए ताकि पता चले कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। ये हमारी आज भी नंबर 1 डिमांड है। हम मांग करते हैं जो शो काज नोटिस है उनका जवाब भी जो हमने तैयार किया, उसके जवाब में भी हमने फर्स्ट यही लिखा है कि वी डिमांड जुडिशियल इंक्वायरी फ्रॉम हाई कोर्ट जज और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो आपका लेंगे विकास स्ट्रेटजी, पहले 1-2 मिनट बात कहेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। बस थोड़ा जा साथियों, ज़्यादातर बातें तो बता दी हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से 1-2 बात मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आम किसान तक पहुंचानी है और लैंग्वेज की बड़ी समस्या रहती है। तो 122 टोटल किसान गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 8 की जमानत हो चुकी है, 2 की जमानत लग चुकी है, नहीं हो चुकी 2 की और जमानत हो चुकी है और 5 की और लगा ली है। एक तो सभी किसान साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और जो 38 किसान गुम हुए थे उनमें से अभी 16 बाकी हैं। बाकी को वकीलों की मदद से संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल जो टीम है उसके प्रयासों से ढूंढ लिया गया है, और अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास, इस प्रकार के किसान को बदनाम करने का। और मैं ये समझता हूँ कि जो संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था, जो लोकतंत्र हमने देश की आज़ादी, देश को आज़ाद करवा के जिस लोकतंत्र की स्थापना हमने करवाई थी, उस लोकतंत्र और संविधान की हत्या खुलेआम आज भारत सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। निर्दोष किसानों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जिनके ऊपर लगानी चाहिए थी वो तो आज भी
साथियों 183 MP आज भी संघन्य अपराधी, बिल्कुल गैर जमानती अपराधी आज भी संसद के अंदर बैठे हैं, लेकिन किसानों को जबरदस्ती पकड़ के नौजवान छोटे छोटे बच्चों को जेलों में जो डाला जा रहा है वो बिल्कुल अन्याय है और सरकार के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। धन्यवाद सर। हाँ जी बस 38 में से 22 लोग आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। उनमें से कुछ तो जेल में ही थे, कुछ घर वालों के पास पहुंच चुके हैं। ਟੋਟਲ 44 FIR ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। दिल्ली पुलिस का जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वो 44 FIRs का था। हमारे पास जो हमारे लीगल पैनल ने हमें बिल्कुल ब्रीफ किया सारा कुछ ढूंढने के बाद कि जो 122 लोगों का अरेस्ट हुआ वो 14 FIRs में हुआ। हमारे पास 22 FIR की कॉपी है, अभी 22 FIR वजूद में नहीं है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के पास है, वो अभी तक नहीं मिले। जबकि FIR रजिस्टर होने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस होती है वो FIR, हमारे पास नहीं है वो अभी। तो ये हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन नोटिसों के इवज में उन किसानों को या उन लोगों को इन FIRs में डालकर ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਏ ਕਿਸੇ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਨੂੰ FIR ਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।